प्यारे बच्चों, आज हम डिराइव करेंगे एक्सप्रेशन फॉर प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस. Let's consider a gas enclosed in a cubical vessel OPQRSTKL. इस क्यूबिकल वेसल में हमने गैस कंसिडर कर ली और हम एज्यूम कर रहे हैं कि गैस इज ए कलेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स of the order of Avogadro's number, and these molecules are in incessant random motion in any direction. At ordinary pressure and temperature, average distance between molecules is a factor of 10 or more than the typical size of the molecule. Mean free path, that is the average distance a molecule travels between two successive collisions with other molecules is 100 times the interatomic distance and 1000 times the size of the molecule. Thus, the interaction between gas molecules is negligible, and we can assume that molecules are moving freely in straight lines according to Newton's first law. However, occasionally they come close to each other, experience intermolecular forces, and their velocities change. The collisions are considered to be perfectly elastic. So kinetic energy is conserved, total kinetic energy is conserved, and total momentum is conserved. We also assume that mutual collisions of gas molecules result in the exchange of velocities only. Collisions with the walls of the container. Only collisions with the walls of the container contribute to pressure exerted by the gas. तो आइए फाइंड आउट करते हैं एक्सप्रेशन फॉर प्रेशर exerted by gas molecules, जो कि है due to collision of molecules with the walls of the vessel. Let the side of the cube is L. तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा क्यूब का? L क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब और द वॉल्यूम ऑफ द गैस enclosed. Let M is the total mass of the gas and small m is the mass of each molecule. Let n is the total number of gas molecules in the vessel. अब जब एक मॉलिक्यूल का मास है m, तो n मॉलिक्यूल्स का कितना हो जाएगा? m into n equal to capital M, total mass of the gas. Let the n molecules of gas are A1, A2, A3 and so on An. तो हमने नाम दे दिए मॉलिक्यूल्स को. Let these are moving with velocities v1, v2, v3 and so on vn. Means A1 is moving with velocity v1, A2 is moving with velocity v2, A3 is moving with velocity v3 and so on. An is moving with velocity vn. यहाँ हम एक मॉलिक्यूल शो कर रहे हैं A1 जो कि मूव कर रहा है विद वेलोसिटी v1. ये वेलोसिटीज़ हैं इन एनी डायरेक्शन. मॉलिक्यूल्स कैन मूव इन एनी डायरेक्शन. तो इस v1 के कंपोनेंट्स हुए v1x along x axis, v1y along y axis and v1z along z axis. इसी तरह से v2 के कंपोनेंट्स हो जाएंगे v2x, v2y, v2z. v3 के कंपोनेंट्स हो जाएंगे v3x, v3y, v3z एंड सो ऑन. vn के कंपोनेंट्स हो जाएंगे vnx along x axis, vny along y axis and vnz along z axis. v1 को हम लिख सकते हैं v1xi कैप प्लस v1yj कैप प्लस v1z k कैप.
और v1 स्क्वायर को लिख सकते हैं v1 एक्स स्क्वायर प्लस v1 वाई स्क्वायर प्लस v1 जेड स्क्वायर। इसी तरह से v2 को लिख सकते हैं, v2 स्क्वायर को ये लिख सकते हैं, v3 को इस तरह से, v3 स्क्वायर को इस तरह से लिख सकते हैं। एंड vn इज इक्वल टू vn एक्स आई कैप प्लस vn वाई जे कैप प्लस vn जेड के कैप एंड vn स्क्वायर इज इक्वल टू vn एक्स स्क्वायर प्लस vn वाई स्क्वायर प्लस vn जेड स्क्वायर। Let's now consider motion of molecule A1 between its two successive collisions on face LQRS। अब देखिए कि ये मॉलिक्यूल A1 एक्स एक्सिस की तरफ इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है विद वेलोसिटी v1x। अब ये यहाँ इससे इस फेस से कोलाइड करेगा। इसका मोमेंटम कितना होगा? मास इनटू वेलोसिटी। मास इज m, वेलोसिटी इज v1x, तो इनिशियल मोमेंटम हो जाएगा m इंटू v1x। अब क्योंकि कोलिशंस आर इलास्टिक तो ये मॉलिक्यूल इस फेस से कोलाइड करके रिबाउंड होगा, वापस आएगा विद सेम वेलोसिटी। वेलोसिटी की का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा v1x, डायरेक्शन बदल जाएगी। तो फाइनल मोमेंटम कितना हो गया एक कोलिशन के बाद? इट विल बी माइनस m इंटू v1x, क्योंकि नेगेटिव साइन बिकॉज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ a1 इज रिवर्स्ड। चेंज इन मोमेंटम कितना हो जाएगा? चेंज इन मोमेंटम विल बी इनिशियल मोमेंटम माइनस फाइनल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम भी ले सकते हैं, हमें मतलब है इसके मैग्नीट्यूड से। तो चेंज इन मोमेंटम इज 2m इंटू v1x। अब यहाँ एक चीज़ बहुत ध्यान से समझने वाली है कि ये चेंज इन मोमेंटम जो है वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद हो रहा है और कितने टाइम के बाद, कितने टाइम में हो रहा है ये चेंज इन मोमेंटम। अब ये कोलाइड करेगा यहाँ, मान लीजिए कि इस टाइम पर ये कोलाइड किया और ये बैक जाएगा विद वेलोसिटी माइनस v1x, इस फेस पर पहुँचेगा। डिस्टेंस इसने यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल किया l, मतलब एक कोलिशन यहाँ पर और फिर वापस ये गया और फिर वापस आएगा v1x वेलोसिटी से दूसरी कोलिशन। मीन्स कि जब ये इधर गया तब इसकी वेलोसिटी माइनस v1x, फिर वापस आया वेलोसिटी v1x, तो यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी हो गई v1x, इनिशियल हो गई माइनस v1x। तो बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिशंस इसने डिस्टेंस ट्रेवल किया 2l, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, और बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिशंस ही ये चेंज हो रहा है मोमेंटम में। 2m इंटू v1x इज द चेंज इन मोमेंटम इन टू सक्सेसिव कोलिशंस। आइए अब फाइंड आउट कर लेते हैं टाइम टेकन for the molecule to complete 2l distance or the time taken by the molecule between two successive collisions on this phase। तो हमने ये change in momentum निकाला। In order that the molecule may strike the face LQRS, right side पर again, it must travel a distance 2l, that is from LQRS to OPKT। OPKT इस तरफ फेस है and back। अब क्योंकि velocity is equal to distance over time, तो time will be equal to distance over velocity। Time between two successive collisions is equal to distance 2l divided by velocity v1x। अब चेंज इन मोमेंटम है 2m इंटू v1x। ये चेंज इन मोमेंटम कितने टाइम में हो रहा है? 2l ओवर v1x में। तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं
rate of change of momentum. Rate of change of momentum will be change in momentum divided by time. तो ये आ गया mv1x² over L. अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन हमें पता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स एक्सर्टेड बाय मॉलिक्यूल A1 along x-axis that is on face LQRS. तो ये हमारे पास आ गया ये रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम एंड लेट F1 इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय A1. तो F1 इज इक्वल टू दिस. Similarly, force exerted by molecule A2, let's call it F2 is equal to m into V2x square हो जाएगा divided by L. V1x square की जगह V2x square. और force exerted by molecule A3 along x-axis F3 is equal to ये लिख लेंगे and so on. फोर्स एक्सर्टेड बाय मॉलिक्यूल AN वो कितना हो जाएगा? लेट्स कॉल इट FN इज इक्वल टू m इंटू VNx² ओवर L. लेट्स कैलकुलेट टोटल फोर्स एक्सर्टेड बाय ऑल द मॉलिक्यूल्स. वो कितना हो जाएगा? Fx इज इक्वल टू F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस FN. इनकी वैल्यूज़ लगा दें. इनमें से m ओवर L कॉमन ले लें और अंदर रह जाएगा V1x² प्लस V2x² प्लस V3x² प्लस ऑन दिस. अब ये टोटल फोर्स है अलोंग x एक्सिस ऑन फेस LQRS. चलिए अब फाइंड आउट करते हैं प्रेशर. फोर्स लग रहा है तो प्रेशर भी होगा. Pressure is defined as force per unit area, force over area. फेस का एरिया कितना है? L². तो प्रेशर एक्सर्टेड बाय ऑल द मॉलिक्यूल्स ऑन फेस LQRS इज इक्वल टू Fx ओवर L². यहाँ m ओवर L था, डिवाइड किया L² से तो यहाँ L³ आ जाएगा. m ओवर L³ इंटू ये सारा आ जाएगा. इसको हमने कह दिया Px. सिमिलरली प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस मॉलिक्यूल्स अलोंग y एक्सिस इसको Py कह देंगे. इट विल बी m ओवर L². सिमिलरली यहाँ V1x² आ जाता तो यहाँ V1y² प्लस V2y² प्लस ऑन VNy². इसी तरह से प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस मॉलिक्यूल्स अलोंग z एक्सिस Px इज इक्वल टू यहाँ z के आ जाएंगे V1z² प्लस ऑन VNz². बट द प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस मॉलिक्यूल्स इज सेम इन ऑल डायरेक्शंस. सारी डायरेक्शंस में प्रेशर सेम है तो क्या लिख सकते हैं? Px इज इक्वल टू Py इक्वल टू Pz. लेट्स कॉल इट P. तो P को क्या लिख सकते हैं? Px प्लस Py प्लस Pz डिवाइडेड बाय 3. यहाँ वैल्यूज़ लगा दें Px, Py और Pz की. ये आ गया ये 1/3. Px इज इक्वल टू m ओवर L³ इंटू दिस प्लस m ओवर L³ सारे में से कॉमन आ गया और ये आ गया. ये हमारे पास आ जाएगा. यहाँ देखिए कि 1/3 m ओवर L³ को लिखा V वॉल्यूम ऑफ द गैस और द वेसल. यहाँ हमने क्या किया? V1x² प्लस यहाँ से ले लिया V1y², यहाँ से ले लिया V1z² प्लस अब इनको इकट्ठा कर लिया V2x² प्लस यहाँ से V2y² प्लस यहाँ से V2z² प्लस इसी तरह से ये और ये. इसको हम लिख सकते हैं V1² और इसको लिख सकते हैं V2², इसको लिख सकते हैं V3² प्लस 1 इसको Vn².
ये V1 स्क्वायर, ये V2 स्क्वायर, ये V3 स्क्वायर और ये Vn स्क्वायर। इसको हमने डिवाइड कर लिया n से और यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया n से, मेक्स नो डिफरेंस। m इंटू n इज इक्वल टू कैपिटल M, मास ऑफ, टोटल मास ऑफ गैस, डिवाइडेड बाय 3v। और इसको हम लिख रहे हैं स्क्वायर रूट ऑफ दिस इज इक्वल टू VRMS, स्क्वायर रूट ऑफ मीन ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ वेलोसिटीज ऑफ इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स। और क्योंकि इसका स्क्वायर है यहाँ तो VRMS स्क्वायर। M over V is equal to density rho. So this is the expression for pressure exerted by gas molecules on the walls of the container or pressure of an ideal gas. यहाँ से VRMS भी लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू 3p ओवर रो, इट्स स्क्वायर रूट। और यहाँ से हम VRMS को डिफाइन भी कर सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ मीन ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ वेलोसिटीज ऑफ इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स। तो बच्चों, आई एम श्योर यू हैव फॉलोड। थैंक यू।